میرا عنوان ہے مومنوں کی پہچان۔ تو مومنوں کی پہچان کلام پاک سورہ انفال میں 5 بتلائے ہیں۔ 1 نمبر میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر، اللہ کا خوف، خشیت الہی۔ 2 نمبر میں ہے کہ قرآن کی آیت سے ایمان میں تازگی اور بڑھوتری پیدا ہو جانا۔ 3 نمبر میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ رکھنا۔ 4 نمبر میں ہے کہ 5 وقت کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھنا، اور 5واں نمبر میں ہے اپنے مال کی زکوٰۃ دینا۔ اولئک ھم المؤمنون حقا۔ یہ 5 چیزیں جس بندہ کے اندر پائے جائیں گے وہی حقیقت میں مومن ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، بھائیوں، 1 نمبر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر، خشیت الہی بتلائے گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی متعدد جگہ پر بار بار بندوں سے کہا ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عام لوگوں سے فرمایا ہے کہ اے لوگو، تم اس پروردگار عالم سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، ایک نفس سے پیدا کیا۔ دوسری آیت میں فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یہاں مومنوں سے کہا ہے، وہ اہل ایمان ہے، مومن ہے، وہ اسلام کے پیروکار ہیں، پھر بھی اللہ کہتا ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا ڈرنے کا حق ہے، اور مت مرو مگر مومن اور مسلمان ہو کر مرو، اس میں تمہاری کامیابی ہے، تمہاری نجات ہے۔ تیسری آیت میں فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا وقولوا قولا سدیدا۔ اے ایمان والو، تم اس پروردگار عالم سے ڈرو اور تم سچ بولو، سچ بولو، جب بھی بولو تو سچ بولو، اور تمہارے اعمال کو تم سدھارو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اللہ معاف کرنے والا مہربان ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح سے کلام پاک کے اندر بار بار بندوں سے، لوگوں سے، مومنوں سے کہا ہے کہ تم اللہ سے ڈرو۔ اور ایک چیز ہے کہ عبادات کے اندر اگر تقوی نہیں ہے، عبادات کے اندر اگر خشیت الہی نہیں ہے، عبادات کے اندر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر نہیں ہے تو وہ عبادت ہی نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا کہ خوف خدا ایک ایسی چیز ہے، مومنوں کی پہچان ہے، جس کے بغیر وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، جس کے بغیر وہ کامران نہیں ہو سکتا ہے، جس کے بغیر وہ جنت کے مستحق نہیں بن سکتا ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستو، بھائیوں، آج ہم دنیا میں یہ باتیں کہہ چکا ہوں گزشتہ جمعہ میں کہ آج ہم نماز پڑھتے ہیں تو یہ اللہ کا ڈر ہے، آج ہم اپنے مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں تو یہ اللہ کا ڈر ہے، آج ہم اپنے رمضان المبارک کے روزے رکھتے ہیں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہے، آج ہم حج کرتے ہیں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہے، آج ہم خود نہ کھا کر بھوکوں کو کھلاتے ہیں تو یہ بھی اللہ کا ڈر ہے، آج ہم خود نہ پہن کر ننگوں کو کپڑا پہناتے ہیں یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہے، آج ہم خود پیاسا رہ کر دوسروں کو پانی پلاتے ہیں
ईसार करते हैं, यूसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, अपने ऊपर दूसरों को तरजीह देते हैं, वो खुद ही जरूरतमंदी क्यों ना हो। ये आला दर्जा की फियाजी है मेरे दोस्तों और भाइयों, इसमें भी अल्लाह तबारक व तआला का डर है। पता ये चला कि अल्लाह के डर के बगैर हम कामयाब नहीं हो सकते। इसीलिए सूरह अनफाल में फरमाया है, इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम, मोमिन की पहली शनाख्त, मोमिन की पहली पहचान है कि जब उसके सामने अल्लाह का जिक्र हो, अल्लाह तबारक व तआला का नाम लिया जाए, तो अल्लाह के डर से उसके दिल के अंदर कपकपी पैदा हो जाए, उसका दिल लरज़ जाए, उसका दिल कांप जाए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों और भाइयों, पता ये चला कि आज हम मोमिन तब कामिल मोमिन हो सकते हैं जब हमारे दिल में अल्लाह का डर होगा, अल्लाह का खौफ होगा, खशियत इलाही होगी। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों और भाइयों, अगर उसके अंदर अल्लाह का डर है तो ये अल्लाह का डर ही तो है कि लोग गुनाह का काम नहीं करते हैं, लोग शराब नहीं पीते हैं, लोग दगाबाजी नहीं करते हैं, लोग बदफेली नहीं करते हैं, लोग रिश्वत नहीं खाते हैं, लोग सूद नहीं खाते हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला का डर है। जैसे कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम आपने सुना होगा, कलाम पाक के अंदर सूरह यूसुफ एक अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल किया है। उसमें यूसुफ और जुलेखा के वाक़या को बयान किया है कि जब जुलेखा ने, अजीज मिस्र की बीवी ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बंद कमरे में बदफेली के लिए, बुराई के लिए दावत दी, तो यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया है कि मैं अल्लाह से डरता हूँ। क्या फरमाया? मैं अल्लाह से डरता हूँ, मेरे दिल में अल्लाह का डर है, अल्लाह का खौफ है। दुनिया की निगाह देखे या ना देखे, परवरदिगार आलम हमें देख रहा है, लिहाजा अल्लाह के डर से उन्होंने उस काम को अंजाम नहीं दिया। पता ये चला मेरे दोस्तों और भाइयों, जिसके दिल में खशियत इलाही होगी, अल्लाह तबारक व तआला से डरने वाले बंदे को अल्लाह तबारक व तआला माफ कर देता है। जैसे कि बुखारी शरीफ की एक हदीस है, रावी ये हदीस अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। वो बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुज़िश्ता कौम के एक शख्स के बारे में बयान किया है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसको मालदार बनाया था, उसे दौलतमंद बनाया था, उसे साहिब सरवत बनाया था, अच्छा खासा माल दे रखा था। मेरे मोहतरम, दुनिया में जमीन और जायदाद कर लिया, उन्होंने घर बिल्डिंग बना लिया, उन्होंने कोठी बंगला कर लिया, गाड़ी घोड़ा कर लिया। जब वो बूढ़े हो गए, जब वो कमजोर हो गए, तो अपने बेटों से फरमाया कि ऐ मेरे बेटो, मैं तुम्हारे हक में अच्छा बाप हूँ या नहीं। तो बेटों ने कहा कि अब्बू जान, आप हमारे सबसे अच्छा बाप हैं, इसलिए कि आपने हमारे लिए सब कुछ किया, घर बना दिया, जमीनों जायदाद कर दिया, दुकानदारी कर दिया। तो बाप ने कहा, मैं तो तुम्हारे लिए सब कुछ किया, लेकिन मैं आज तक कोई नेकी का काम नहीं किया। सुभान अल्लाह, बुखारी शरीफ की हदीस है मेरे दोस्तों और भाइयों, आज तक मैंने कोई नेकी का काम नहीं किया हूं। गुनाहगारी में, सियाकारी में, खताकारी में, हरामकारी में मैं पड़ा रहा। मेरे दिल में अल्लाह का डर नहीं था, अल्लाह का खौफ नहीं था। अब बूढ़े हो चुका हूँ, अगर अल्लाह हमसे पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा। बेटों से, बेटों को वसीयत की, नसीहत की, क्या मेरे बेटो, मैं जब मर जाऊंगा, मर जाने के बाद मुझको जला देना, और जला देने के बाद हड्डियों को पीस कर जर्रात बनाकर, जब पूरी आंधी आएगी, हवा चलेगी, तो उस हवा में और उस आंधी में उस जर्रात को उड़ा देना। एक दूसरी रिवायत में है कि बाप ने बेटे को नसीहत की कि जब मैं मर जाऊंगा मुझको जला देना और उसके जर्रात को, हड्डियों को
पीस करके उसके जर्रात को आधे समंदर में बहा देना और आधे हवा में उड़ा देना। उसका अकीदा ये था कि इस तरह करने से अल्लाह हमको खोज कर नहीं पाएगा, तलाश कर नहीं पाएगा, अल्लाह हमको पूछेगा क्या। सुभान अल्लाह। जब वो इंतकाल कर गए तो बेटों ने बाप की नसीहत के मुताबिक वैसा ही किया। ये मरफू हदीस है कि उसको जलाया और जलाने के बाद उसके हड्डियों को पीस कर जर्रात बनाया और फिर उसके जर्रात को आधे हवा में उड़ा दिया और आधा पानी में बहा दिया। मेरे दोस्त और भाइयों, परवरदिगार आलम ने हवा को हुक्म दिया कि ऐ हवा, उसके जर्रात जितने हैं तुम उसको इकट्ठा जमा करो। समंदर से कहा कि ऐ समंदर, उसके जर्रात जितने हैं उसको इकट्ठा जमा करो। और जमा करने के बाद ये अल्लाह की कुदरत है, उसको दोबारा जिंदा किया और पूछा कि ऐ बंदा ए खुदा, तूने अपने बेटों को इस तरह की वसीयत क्यों की थी? तो उसने फरमाया कि परवरदिगार आलम, तेरे डर से मैंने ऐसा किया था, तेरे खौफ से ऐसा किया था। मैं डर गया था कि मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने हर तरह की नियामतों की दौलत से माला माल की, सेहत दी, तंदुरुस्ती दी, ताकत तवानाई दी, घर दिया, बिल्डिंग दिया, रुपया पैसा औलाद दी, लेकिन मैं अल्लाह की इबादत से गाफिल रहा, अल्लाह के जिक्र अज़कार से गाफिल रहा। अगर अल्लाह तबारक व तआला मुझसे पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा? अल्लाह तेरे डर से मैंने ऐसी वसीयत की थी। तो मेरे मोहतरम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस बंदा के गुनाहों को अल्लाह ने माफ कर दिया। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्त और भाइयों, गौर करने का मकाम है। इस हदीस से पता चला कि जो बंदा अल्लाह से डरता है, अल्लाह से खौफ खाता है, जिसके दिल में खशियत इलाही होती है, जो अल्लाह के डर से कांपता है, अल्लाह की इबादत और रियाजत में मशगूल रहता है, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ कर देता है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों और भाइयों, ये मोमिन की पहली शनाख्त है। इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम। जब उसके सामने अल्लाह का जिक्र हो तो अल्लाह के डर से उसका दिल कांप जाए। दूसरी निशानी, व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, कि जब उसके सामने कुरान करीम की तिलावत की जाए तो उसके ईमान में ताजगी पैदा हो जाती है। आप गुज़श्ता जुमा सुना है, एक नुस्खे, एक मिसाल मैं बयान करता हूं कि नज्जाशी बादशाह, ये हाबशा के रहने वाले थे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत को, मोमिनों को, मुसलमानों को जब मक्का के काफिरों ने सताया, दुख दिया, उन पर जुल्म सितम का पहाड़ तोड़ा, तो हिजरत करके वो मक्का से हबशा चले गए। वहां जाकर मुसलमान बड़े ही अमनो अमान के साथ रहने लगे। उन्हीं में से जाफर बिन अबी तालिब रदी अल्लाह ताला अन्हु भी थे। जाफर तैयार थे। इधर काफिरों ने मुसलमानों को हबशा से निकालने के लिए, फिर मक्का लाने के लिए वफ्द भेजा, जमात भेजा, कुछ लोगों को भेजा, ढेर सारे तोहफे तहाइफ देकर। ये काफिर वहां पहुंचे तो वहां के हाशिया नसीनों से मिले, वहां के उनके घुसखोर सिपाहियों से मिले और जाकर ये तोहफे दिखाए और बादशाह के सामने पेश किए कि बादशाह, हमारे मुल्क से कुछ नौजवान भागकर आपके वतन में आया है, आपके मुल्क में आया है। उन्होंने अपने बाप दादा के मुल्कों को छोड़ दिया है और एक नया दीन का इजाद किया है। नज्जाशी बादशाह ने मुसलमानों को बुलाया। बुलाने के बाद उससे पूछा तो मुसलमानों ने सच बतलाया, झूठ नहीं कहा। जाफर बिन अबी तालिब रदी अल्लाह ताला अन्हु ने तकरीर की और नज्जाशी बादशाह को समझाया कि बादशाह साहब, इससे पहले हम बदकारी करते थे, हम हराम खाते थे, हम मुर्दार खाते थे, हम पाक दामन औरतों पर इल्जाम लगाते थे,
हम हक को बातिल के दरमियान कोई फर्क नहीं करते थे, हम जायज और नाजायज के दरमियान कोई फर्क नहीं करते थे, हम हलाल और हराम के दरमियान कोई तमीज नहीं करते थे। तब अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे ही कौम से एक नबी को भेजा जिन्होंने हमको सही गलत में तमीज बतलाया, जिन्होंने हमको जायज ना जायज में तमीज करने का तरीका बतलाया, जिन्होंने हलाल और हराम के दरमियान तमीज करने का तरीका बतलाया। ये सारी चीजें जाफर बिन अबी तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने तकरीर की। तो नज्जाशी बादशाह ने कहा कि जो तुम्हारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लेकर आए हैं निशानी, वो तुम हमको पढ़कर सुनाओ। तब जाफर बिन अबी तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सूरा मरियम की इब्तदाई आयतों को पढ़कर सुनाया। अल्लाहु अकबर। काफ हा या ऐन स्वाद जिक्र रहमत रब्बिका अब्दहु ज़करिया इज़ नादा रब्बहु निदाअन खफिया क़ाल रब्बि इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्ताअल रासु शैबन वलम अकुम बिदुआइका रब्बि शक़िया। जब जाफर बिन अबी तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हु इस आयत करीमा की तिलावत फरमा रहे थे, नज्जाशी बादशाह दोनों जानों के दरमियान बैठे हुए थे और सुनकर वो बिल्कुल महवा हो रहे थे, मशहूर हो रहे थे। जब तिलावत कर चुके सुभान अल्लाह, उनकी कुरान की तिलावत को सुनकर नज्जाशी बादशाह और उनके उस्कुफ, उनके पादरी इस कदर रोए सुभान अल्लाह कि उसकी दाढ़ी मुबारक तर हो गई, ज़ारो कतार रोए। कुरान की इस आयत को सुनकर अल्लाह ने उसके ईमान में इसकी ताजगी फरमाई, इसके जियादती फरमाई। इस आयत करीमा को सुनकर कि नज्जाशी बादशाह ने जो वक्त काफिरों ने भेजा था उनको फरमाया कि तो जो तुम तोहफे तहाइफ लेकर आए हो ये रिश्वत हमको नहीं चाहिए। जब परवरदिगार आलम ने हमारे मुल्क को हमको वापस किया था, हमसे कोई रिश्वत नहीं ली थी, हमसे कोई सूद नहीं लिया था, हमसे कुछ लिया नहीं था, लिहाजा हम तुम्हारे रिश्वत को नहीं ले सकते। उनके तोहफे तवाइफ को वापस कर दिए और उसको अपने वतन से निकाल दिए। कहा कि हम मुसलमानों को अपने वतन से नहीं निकाल सकते। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों और भाइयों, ये कुरान ही की आयत थी जिसकी वजह से नज्जाशी बादशाह ने उनके तोहफे तहाइफ को वापस कर दिए और डंके के चोट के साथ कह दिए, जाओ तुम मक्का वालों को कह दो हम मुसलमानों को हबशा से निकाल नहीं सकते, उसको वो अमन व अमान के साथ हमारे पास रहे। ये कुरान ही की आयत थी जिसकी वजह से वो सुनकर इतना रोए थे मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों और भाइयों। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, व इदा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। मोमिन की दूसरी सिफत है जब उसके सामने कुरान करीम की तिलावत की जाए, जब उसके सामने कुरान करीम पढ़ी जाए तो उसके ईमान में ताजगी पैदा हो जाती है। हमें भी चाहिए कि हमारे दिल में अल्लाह का डर हो, खौफे खुदा हो, खशियत इलाही हो और कुरान की आयतों को सुनकर ईमान में ताजगी पैदा करें। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, इतना कठोर ना बने, इतना गिरा हुआ ना बने कि आपके सामने पूरी कुरान पढ़ी जाए, पूरी किताब पढ़ी जाए और आप तस से मस नहीं हो रहे हैं, आपके अंदर कोई तगय्युरिया और तब्दीली नहीं आ रही है, आपके अंदर कोई तबादला नहीं आ रहा है, आप कोई बदल नहीं रहे हैं। इतना कठोर ना बने, वरना फिर क़यामत के दिन आपकी सारी चर्बी पिघल जाएगी। मेरे मोहतरम, तीसरी निशानी है व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। मोमिन अल्लाह पर तवक्कुल करते हैं, अल्लाह पर भरोसा करते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पूरी जिंदगी को आप देखिए तो अल्लाह पर तवक्कुल ही तवक्कुल है, अल्लाह पर भरोसा ही भरोसा है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आज़र बुतर के घर में पैदा होने के बावजूद आताए नबूवत और रिसालत के मान बाद बुत शिकन बन गए और अपनी कौम के बुतकदे में दाखिल होकर तमाम बुतों को तोड़ फोड़ दिया, जिसके नतीजे में वक्त के जाबिर और जालिम हुक्मरान नमरूद के सामने पेश किया गया। मगर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जर्रा बराबर भी थर्राए नहीं, घबराए नहीं, बल्कि हक गोई का मुजाहिरा करते हुए कामयाब व कामरा रहे। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखकर सीखें कि जब आप अल्लाह पर तवक्कुल करें
کریں گے اللہ کی مدد ہوگی, اللہ کا امداد ہوگا, اللہ آپ کو ضائع اور برباد نہیں ہوگا. میرے محترم بزرگوں, دوستوں اور بھائیوں, توکل علی اللہ پر انشاءاللہ باتیں ہوتی رہیں گی. ابھی سامنے عید الاضحیٰ ہے. عید الاضحیٰ قربانی, یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یادگار ہے, اس کی تاریخ ہے. زبردست واقعہ اور کہانی تاریخ چھپی ہوئی ہے. پروردگار عالم نے اس واقعہ کو کلام پاک کے اندر لا کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قربانی کو امت محمدیہ پر فرض کرا دیا کہ آپ قربانی دیں. جو صاحب استطاعت ہے, صاحب مال ہیں, صاحب ثروت ہیں, جس کے اندر قربانی دینے کی طاقت ہے, وہ قربانی دیں. اور صلاحیت رہنے کے باوجود, طاقت رہنے کے باوجود اگر وہ قربانی نہیں دیتے ہیں تو ہمارے عیدگاہ میں نہ آئے. اللہ کے نبی نے فرمایا ہم میں سے نہیں ہے. تو اسی لیے میرے دوستوں اور بھائیوں, انشاءاللہ اب سنتے چلیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کو, کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیسے اللہ پر توکل کیا. باپ کو چھوڑ دیا, ماں کو چھوڑ دیا, خاندان کو چھوڑ دیا. ارے اس کو آگ پر ڈالا گیا, جب آگ پر ڈالا گیا تب بھی اللہ پر توکل کیا. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اللہ نے آگ سے فرمایا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم. سبحان اللہ, عجیب و غریب, یہ اللہ پر توکل کرنے کا ثمرہ اور نتیجہ ہے, رزلٹ ہے. انہوں نے اللہ پر توکل کیا, نتیجہ یہ ہوا جو پوری دنیا کو جلا سکتی ہے, جو پوری دنیا کو جلا کر راکھ بنا سکتی ہے, وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامت ہو جاتی ہے. یہ اللہ پر توکل کرنے ہی کا نتیجہ ہے. تو یہ مومن کی تیسری شناخت ہے, وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. اس موضوع پر آپ سنتے رہیں گے. میں بارے الہ سے دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم ہم جملہ مسلمانوں کو اللہ دل کے اندر خوفے خدا پیدا کر دے. اے اللہ اس کے ایمان میں اتنی تازگی کر دے کہ اس کے دل کے اندر کپکپی پیدا ہو. اے اللہ جیسے قرآن کی تلاوت سنے تو اس کے ایمان میں اضافہ ہو, ایمان میں بڑھوتری ہو, وہ نماز کا پابند بن جائے.